TechCOE welcomes you. This is the second lecture of Networking, Module 1, Data Communication Components and Data Flow. Let's recapitulate what we have discussed in our last lecture. We discussed what networking was. Networking is referred to as connecting computers electronically for the purpose of sharing information. Then we discussed what data communication was. It was the exchange of data between two devices, and this transmission medium line was very important, like I said. Then we discussed the effectiveness, how data communication became effective with the help of four fundamental characteristics that were delivery, accuracy, timeliness, and jitter. We discussed all of them at length in our previous lecture. In this lecture, we will be learning about the components of data communications, data representation, and data flow. So before heading on to direct components of data communication, we must first see to each and every word that is present in our heading. We have already discussed about data. What was the data? That is the processed form of, that is the information that we have to share. Then we discussed what communication was. This time we have to discuss what components are. What are components? In general English, अगर हम बात करें, so what do you mean by a component? Component means a part, something that constitutes something. So एक बड़ी सी चीज़ है, वो एक बड़ी सी चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, तो वो हमारे क्या होते हैं? हमारे वो components होते हैं. So a part or element of a larger whole, especially a part of a machine or a vehicle, comprises of your components. Example क्या है? An assembly plant for imported components. एक imported components का assembly plant बना दिया. तो ये हमने components का मतलब समझा है, but ये networking का components नहीं है. Networking के कौन से components हैं? Networking के 5 components हैं. कौन से 5 components हैं? Message, sender, receiver, transmission medium, and protocol. So let us discuss them one by one. Message क्या होगा? किसी भी communication, data communication में message क्या होगा? क्या होगा? हमारा data ही होगा. Data मतलब मैंने बात करी थी कि data is the processed, in the processed form is information. तो message में क्या होगा? Information to be communicated. And popular form of information include text, numbers, pictures, audio, video. ये सब हमारा data है. तो ये क्या है? मैसेज क्या होगा? सपोज अगर मेरे 2 कंप्यूटर्स हैं और उन्हें कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले उनके बीच में क्या जाना चाहिए? एक मैसेज जाना चाहिए, है ना? तो ये मैसेज क्या होगा? वो डेटा ही होगा. फिर एक सेंडर होना चाहिए, एक सेंडर एस लिख देती हूँ मैं, और एक रिसीवर होना चाहिए, आर लिख देती हूँ. सो एक सेंडर है और एक रिसीवर है. फिर क्या है? वो किस तरह से, वो हवा में थोड़ी ना उड़ के जाएगा अब डेटा. जो हमारा डेटा है दैट शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर और समथिंग. और फिर जो लास्ट चीज है प्रोटोकॉल्स, मतलब कुछ रूल्स होने चाहिए जो कि इनकी ट्रांसमिशन को गवर्न करेंगे. कुछ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे डेटा को इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने में. ठीक है. सो अभी हमने क्या डिस्कस करा है? व्हाट इज अ मैसेज? मैसेज क्या है हमारे पास? हमारा डेटा. ओके, ये हमारा क्या हो गया? डेटा. अब जो दूसरा है दैट इज सेंडर. सेंडर क्या होता है? जो कि डेटा को सेंड करेगा, है ना? दैट सेंड्स द डेटा मैसेज. बट ये क्या हो सकते हैं? ये कोई भी हमारा कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, वीडियो कैमरा हो सकता है, एंड सो ऑन. अच्छा, कंप्यूटर तो पता है, टेलीफोन भी पता है, वीडियो कैमरा भी पता है ना? बट ये वर्क स्टेशन क्या हुआ? What is the difference between a workstation and a normal computer? Workstations क्या होते हैं? अब हम वो देख लेते हैं एक बारी. Workstation क्या होते हैं? होते ये भी PCs ही हैं, but they are more powerful than your normal desktop PC. PC has enough power to do most of the tasks, no doubt. It can do email, it can do web surfing, it can do word processing, but ये सिर्फ इन्हीं के लिए ही है. कुछ एक्स्ट्रा करना हो, कुछ ज़्यादा पावर चाहिए हो, तब क्या आ जाते हैं? हमारे वर्क स्टेशन आ जाते हैं. स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ अ पीसी.
किस तरह से स्ट्रॉन्गर वर्जन? कभी मुझे गेमिंग करनी हो, मुझे एनिमेशंस लगानी हो, है ना, एनिमेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, मुझे उनके लिए क्या चाहिए होगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने के लिए, है ना, मुझे क्या चाहिए होंगे? वर्क स्टेशन चाहिए होंगे। सो वर्क स्टेशन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल कंप्यूटर, ऐसा वैसा नहीं है, पावरफुल कंप्यूटर है। इट इज अ स्पेशल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस ओनली। हायर परफॉर्मेंस देता है वो हर किसी फील्ड में, सीपीयू में, ग्राफिक्स में, मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सब कुछ इसमें एक्स्ट्रा होता है। सो अगर कोई मुझसे डिफरेंस पूछेगा, सो यू कैन हैव अ लुक कि एक स्पेशल कंप्यूटर है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, बट जो हमारा डेस्कटॉप है वो सिर्फ रेगुलर यूज़ के लिए ही होता है। और जो हमारा वर्क स्टेशन है वो हाई एंड टेक्निकल मैटर्स के लिए होता है, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग के लिए होता है, एनिमेशंस के लिए होता है, सिमुलेशंस कभी करनी हो, ठीक है, सिमुलेशंस की कितनी ज़रूरत पड़ रही है, देखो मेडिकल फील्ड्स में कितनी होती है, फिर आपको अगर नेवी में चाहिए कुछ भी सीखने के लिए एजुकेशन में, तो भी सिमुलेशन की कितनी ज़रूरत होती है। सो उसमें कौन यूज़ करते हैं? हम वर्क स्टेशंस को ही इन यूज़ लेकर आते हैं। जो हमारे डेस्कटॉप्स हैं वो ब्राउजिंग वगैरह के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं। अब इसमें हायर स्पेसिफिकेशंस होती हैं वर्क स्टेशन में। हायर स्पेसिफिकेशन मीन्स ज़्यादा कैपेबिलिटी, ज़्यादा चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ये ज़्यादा फीचर्स हैं इसके पास। किसी भी चीज़ अगर हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं कुछ भी, तो पहले उसकी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि ये चीज़ कर सकता है, तो ये है, इसमें पीसी से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ज़्यादा काम कर सकता है। हाँ, और ये एक्सपेंसिव भी होगा, ये महंगा है, ये कम महंगा है। सो हम अपने टॉपिक से ड्रिफ्ट नहीं होते हैं। हमने क्या करा था कि हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है वो है मैसेज, वो है सेंडर, जो सेकंड हमने करा था, और उसमें हमारे पास हमने करा था कि सेंडर कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा, कुछ भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो आ जाता है हमारा रिसीवर। अब अगर मैं वर्क स्टेशन नहीं समझाती तो देखो यहाँ पे भी आना था वर्क स्टेशन, ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि रिसीवर में भी आ गया वर्क स्टेशन। चलो, वर्क स्टेशन अब रिसीवर में क्या काम कर रहा है? इट विल रिसीव द मैसेज। सो अभी हमारा जो बाकी सब चीज़ें हैं ये रिसीव भी कर सकती हैं। अब इसमें टेलीफोन, हैंडसेट तो है, टेलीविजन भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। देन कम्स योर ट्रांसमिशन मीडियम। अब जो डेटा है वन पीसी 1 से पीसी 2 में जाने के लिए क्या यूज़ करेगा? हमारा कुछ वायर्स एंड ऑल तो यूज़ करेगा ही, right? So these are the physical path by which the message travels from sender to receiver. And some examples are twisted pair wires, coaxial cables, fiber optics, radio waves. These are wireless. These are wired. राइट? सो ये क्या है हमारे पास? ये नेम्स दिए हुए हैं हमारे वायर्स को। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इन्हें ट्विस्टेड पेयर क्यों कहते हैं, है ना? सो ये आगे वाले लेक्चर्स की बात है। फिलहाल आप देख लो कि एक तरह से ये वायर्स हैं। हाँ, अब आ जाता है हमारा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मैंने बताए इन सिंपल लैंग्वेज क्या है, हमारे पास रूल्स हैं, है ना? रूल्स तो हैं, बट ये किसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं? टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। रूल्स किस लिए है ये? टू गवर्न डेटा communication, and it represents an agreement between the communicating devices. मैंने अगर अपने PC A से PC B में डेटा सेंड करना है, सो इन दोनों को कुछ कॉमन लैंग्वेज जो है अपनी बीच में डराइव करनी पड़ेगी, तभी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब अगर आज पर्सन A जो है वो फ्रेंच में बात कर रहा है, पर्सन B जो है वो जापानीज में बात कर रहा है, तो ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। इन्हें कोई कॉमन लैंग्वेज बीच में रखनी पड़ेगी, दैट इज इंग्लिश। तो यहाँ पे वही है जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन and it's an agreement between the communicating devices. Without a protocol, two devices may be connected but they may not be communicating. कनेक्ट तो हो जाएंगी, वायर्स लगा दिया आपने, कनेक्ट कर दी, बट अगर हमें बात करनी है सो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। प्रोटोकॉल, कोई भी रूल्स, हम भी तो रूल्स फॉलो करते हैं ना, डिसिप्लिन तो रहना ही चाहिए हमेशा। सो यही है, जैसे जस्ट एज अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी
understood by a person who speaks only Japanese. Similarly, protocols, they govern data communication. So here you can see a diagram which has a sender, it has a receiver, it has a message that is to be passed between them through a transmission medium with the help of protocols. And the protocols are same. See, it is also following the same protocol, step 1, step 2, step 3. It is also following the same protocol, step 1, step 2, step 3. That means they understand each other. So this was data communication component. Now comes our next topic, that is data representation. Data represent करना है. Like we represent our family, वैसे ही डेटा को क्या रिप्रेजेंट करेगा. सो डेटा को क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी. सबसे पहले चीज जो रिप्रेजेंट करेगी दैट इज टेक्स्ट. कभी भी टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ABC, तो हमारा क्या है, एक तरह से डेटा ही है. सो टेक्स्ट क्या है. इन डेटा कम्युनिकेशंस टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन बिट पैटर्न. डेटा कम्युनिकेशन में क्या है, बिट पैटर्न 1001000. इस तरह से हमारा जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ text, and it is a sequence of bits, zeros or ones. Different sets of bit pattern have different design to represent text symbols. For example, मेरा अगर 101 है तो ये कुछ और represent करेगा. अगर मेरा 10001 है तो वो कुछ और represent करेगा. तो जो हर एक अलग pattern है इसका bits का, that will represent a different text symbol and each set is called a code. हर एक set को क्या बोला जाता है, code बोला जाता है. And the process of representing these symbols is known as coding. इन्हें क्या बोला जाता है, कोडिंग बोला जाता है. कि मैंने इसके साइन, सपोज मैंने इसे 5 असाइन कर दिया तो ये मेरी क्या हो गई, कोडिंग. Today the method which we are using for coding is the Unicode method. What is Unicode? Universal Character Encoding. इसमें क्या होता है, 32 बिट्स हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ सिंबल और एनी कैरेक्टर दैट इज यूज्ड इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अब तक तो सभी लैंग्वेजेस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है. और यूनिकोड को 2⁻21 बिट्स कैरिंग सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे. अभी हम आगे ASCII जब हम देखेंगे तो उसमें पता चलेगा. अब ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को एब्रीविएट करते हैं हम एज ASCII, एंड इट नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट 127 कैरेक्टर्स ऑफ यूनिकोड. जितने 2⁻21 जो कैरेक्टर्स हैं यूनिकोड में अभी सभी रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं. जो 2⁻21 0 से लेके 2⁻21 जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से 0 से लेके 127 कैरेक्टर्स जो हैं वो ASCII है, वो ASCII ओन करता है. ठीक है. और क्या है ये, कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है. आप ये सोच सकते हो कि जो हमारा यूनिकोड है वो सुपरसेट है और फिर ASCII उसमें बीच में एक सबसेट आ गया. तो यूनिकोड ही कंप्राइज करता है अपने ASCII. ठीक है. Then this is the ASCII table which one should remember. Some value should be remembered. अब मैं एक बार इसे लेबल दिखाती हूँ किस तरह से किया हुआ है. फर्स्ट है जैसे ये डेसिमल, ये जो रो है फर्स्ट रो है, ये डेसिमल रो है. डेसिमल में कोडिंग है ये. देन सेकंड इज हेक्साडेसिमल, थर्ड इज योर ऑक्टल, एंड ये कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करा हुआ है अगर असेंबली लैंग्वेज में कभी यूज करना हो तो. सो अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं 0 कभी लिखती हूँ तो वो क्या होता है, मेरा नल. मतलब नल जो है वो एंड में ASCII में अगर चेंज होगा तो वो हो जाएगा 0. ठीक है. और 0 की हम जो है ASCII जो है वो 7 बिट्स लेता है तो हम इसे 6 × 0 लिख के और लास्ट में भी एक 0 लिख सकते हैं. दैट विल रिप्रेजेंट अ नल कैरेक्टर. वैसे ही अगर मैंने स्टार्ट ऑफ अ हेडिंग मार्क करनी है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, है ना. सो 0 की जगह लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अब जो इसमें याद रखना होता है वो क्या है, हमारी कोडिंग के लिए हमें क्या याद रखना होता है. हमें सबसे पहले तो ABCD ये याद रखनी होती है till Z. So 65 to 90 are the numbers in decimal that encode the
alphabets, the capital letters of English. So A क्या होगा 65, वैसे ही हमारा जो है 90 तक Z आ जाएगा. अगर हमें कर्सिव याद रखनी है तो वो कहाँ से शुरू होता है 97 से. So 97 to 122 जो है वो हमारी कर्सिव जो स्मॉल ABC है, स्मॉल केस ABC वो होती है. डिजिट्स कहाँ से हैं 48. डिजिट्स कहाँ से हैं 48 to 57. ये हमारे डिजिट्स हैं, ये भी हमें याद रखने हैं. और क्या याद रखना है इम्पोर्टेंट, स्पेस याद रखनी होती है. सो 32 को कौन एनकोड करता है, स्पेस. अब 32 की हम रिप्रेजेंटेशन 7 बिट्स में कर सकते हैं, तो वैसे ही ये बाइनरी डेटा पास हो जाता है. नेक्स्ट क्या हमें याद रखना होता है, हमें लाइन फीड, न्यू लाइन वो याद रखनी होती है, दैट इज 10. फिर हमें क्या याद रखना होता है, कैरेज रिटर्न, दैट इज न्यू लाइन में तो आ गए हैं बट फर्स्ट प्लेस पे जाना है तो उसके लिए क्या होता है 13. ये समझे. सपोज मैंने लिखा हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फर्स्ट लाइन में, और फिर मैंने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ से न्यू लाइन जो है मैंने वो अप्लाई करा, तो मेरा कर्सर अभी यहाँ पर था. अब जैसे वो न्यू लाइन में आएगा तो कर्सर यही रहेगा, उसे वापस पोजीशन यहाँ पे लाने के लिए मुझे कैरेज रिटर्न देना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से हटके वापस इस पोजीशन पर आएगा. सो ये होता है कैरेज रिटर्न. सो सबसे पहले अगर मुझे न्यू लाइन में आना है तो मुझे पहले कैरेज रिटर्न करना पड़ता है और फिर मैं न्यू लाइन में आती हूँ, नहीं तो मेरा कर्सर उसी पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे उसे स्टॉप करा था. सो कैरेज रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब हम एंटर दबाते हैं तो उसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं. कौन से, सबसे पहले 13 एंड देन 10. सबसे पहले कैरेज रिटर्न होता है, सबसे पहले कर्सर इस तरफ आ जाता है और फिर न्यू लाइन में आता है तो दूसरी न्यू लाइन में हमें मिलती है. सो दिस इज व्हाई वी शुड नो एनकोडिंग. दिस वाज ASCII टेबल. सो वी डिड टेक्स्ट. टेक्स्ट में क्या है हमारे पास कि हमने कहा है कि डेटा जो है हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, एक तरह से बिट पैटर्न होता है. ये हम यूनिकोड यूज करते हैं इसके लिए, और यूनिकोड का ही पार्ट क्या है ASCII है. बस ASCII जो है वो 7 बिट्स यूज करता है, यूनिकोड जो है वो वेरिएशन शो करता है, कभी 32, कभी 16, कभी 8 बिट पैटर्न, इस तरह से जो है हमारा ये यूज करता है. तो ASCII जो है अब स्टैंडर्ड सेट हो गया है, तो फर्स्ट 0 to 127 कैरेक्टर्स जो हैं यू कैन सी इन द टेबल, वो हमारे क्या होते हैं, वो ASCII के ही होते हैं. देखो लास्ट वाला क्या है, डिलीट है. ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म थी टेक्स्ट, दूसरी फॉर्म जो है वो है नंबर्स. अब जो हमारा डेटा है वो नंबर्स भी हो सकते हैं. सो नंबर्स are also represented in bit pattern, but इनके लिए हम encoding नहीं करते हैं, इनके लिए हम direct conversions जो हैं वो लगा देते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कोई भी नंबर अगर 10 आया तो उसके मैं फटाफट से मैथमेटिकल कन्वर्जन लगा के बाइनरी में चेंज कर दूंगी. कभी 5 आया तो उसकी मैथमेटिकल कोडिंग कर दूंगी, 2 आया तो उसकी मैथमेटिकल कोडिंग कर दूंगी अपने आप ही. मतलब मैं इसमें कन्वर्जन कर दूंगी, कोडिंग नहीं करूंगी. नेक्स्ट इज इमेजेस. इमेजेस भी अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर डेटा. Images are also represented in bit patterns, है ना. Images भी 1001 की फॉर्म में ही होंगी, और simplest फॉर्म में an image is composed of matrix of pixels. पिक्सल क्या होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं. तो स्मॉल डॉट्स जो आती हैं वो हमारे क्या हो जाती है, पिक्सल, और इसे एज अ मैट्रिक्स हम अरेंज करते हैं. लेट मी शो यू अ पिक्चर. लाइक ये है, ये मेरी फुल इमेज है. मुझे अगर इसकी पिक्सल देखनी है तो ये देखो, ये स्मॉल जो डॉट्स हैं ये हमारा पिक्सल है. कभी आप पिक्चर को जूम करके देखोगे तो आपको क्या दिखती हैं, पिक्सल्स दिखती हैं. सो ये हमारे पिक्सल्स हैं. सो वो क्या बोल रहा है, कहता है in the simplest form an image is composed of a matrix of pixel where each pixel is a small dot. अब साइज जो पिक्सल का है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन पे. और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक
यूनिट एरिया में कितनी हमारी पिक्सल्स आ रही हैं। और हम इसे जनरली विड्थ बाय हाइट की फॉर्म में रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कल को अगर मैं लिखती हूँ 2048 इंटू 1553, सो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास 2048 पिक्सल्स हैं और वर्टिकली मेरे पास हाइट वाइज कितनी है 1553 जो है वो पिक्सल्स हैं, और फिर वो एक ब्लॉक बना रही हैं। ठीक है, सो दिस इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या हो जाता है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर इमेज है, अगर वो 1000 पिक्सल्स की बनी है और दूसरी इमेज जो 10,000 पिक्सल्स की बनी है, तो जो 10,000 पिक्सल्स वाली है वो ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा ब्राइट दिखेंगी। बट वही है जो सेकंड केस है हमारा, उसमें हमारी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें बिट्स में। सो फिर आफ्टर एन इमेज जैसे ही हम पिक्सल्स में डिवाइड करते हैं पिक्सल्स में, उन्हीं पिक्सल्स को हम बिट्स में जो है वो चेंज कर देते हैं। और इमेज को रिप्रेजेंट करने के हमारे दो मेथड्स आ जाते हैं। कौन से मेथड्स हैं, एक RGB मेथड और एक YCM मेथड। RGB मेथड क्या है, इसमें हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की हम इंटेंसिटीज सप्लाई करते हैं कि मुझे रेड इतना चाहिए, ग्रीन इतना चाहिए, ब्लू इतना चाहिए। वैसे ही YCM में क्या होता है कि हम येलो, सियान एंड मेजेंटा कलर जो है वो सप्लाई करते हैं। राइट, सो दिस वाज आवर images. Then is audio. Next जो फॉर्म है डेटा रिप्रेजेंट करने की, that is your audio. ऑडियो क्या होता है, रिकॉर्डिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड एंड म्यूजिक। अब बाकी सब टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडियो में क्या डिफरेंस था कि ऑडियो जो है हमारे पास वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, और बाकी जो थी वो क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म्स। वो बाकी जो थी वो क्या है, हमारी डिस्क्रीट फॉर्म्स। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उनकी वैल्यू है, जबकि जो हमारी ऑडियो है वो कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ नॉट डिस्क्रीट। जैसे ही हम माइक्रोफोन भी कभी अगर हम यूज़ करते हैं, सो टू चेंज द वॉइस ऑफ म्यूजिक वी यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वी कैन क्रिएट कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स। वैसे हमारी नेक्स्ट क्या हो जाती है, वीडियो। वीडियो रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अ पिक्चर और मूवी। इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या फिर तो कॉन्टिन्यूस रख सकते हैं, या फिर हम इसे डिस्क्रीट कैसे रख सकते हैं, हम इसे फ्रेम्स के थ्रू रख सकते हैं कि एक पिक्चर्स रख दी हैं लाइन बाय लाइन और फिर उन्हें हाई स्पीड में जो है वो चला दिया है, तो वो हमें अपीयरेंस आइडिया ऑफ मोशन दे रही है। And in the end we can also change our video from digital to analog, and this we'll see in the coming lecture, so don't worry, you just know that audio and video are also one form of representing data. Now this is the difference between continuous and discrete signal. Continuous is continuous, you can draw it without lifting your pen, but discrete means the in between points are not included. For example, if I'm having 2 points here, like this is 0 and here say it's 2, then all the points between them are also included, whereas the points between here, suppose say it's 2 and it's 3, here the points between them are not included. This is a discrete signal and this is a continuous signal. So as you can see, it is a closed interval from -7 to 7, whereas this one is a set representing the values. Now moving on to our next topic, the last topic, that is data flow. अब हमने डेटा रिप्रेजेंट करना भी देख लिया है, बट हमने अब ये नहीं देखा है कि हमारा जो डेटा है, हमने कहा कि ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू चला जाएगा, बट ये ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू फ्लो कैसे करेगा हमारा डेटा, वो अब हम देखेंगे। सो द कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेट तो करेगा, कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है, 3 वेज से हो सकती है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या हो सकता है, द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन होगी
वो यूनिडायरेक्शनल होगी। मीन्स अगर कंप्यूटर ए सेंडर है तो कंप्यूटर बी को रिसीवर ही होना पड़ेगा। ये कभी भी जो है सेंड नहीं कर सकता। ये अगर डेजिग्नेटेड नहीं है सेंड करने के लिए तो ये कभी भी सेंड नहीं कर सकता। इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एज on one-way street only one of the two devices on a link can transmit। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक ही स्ट्रीट है और एक ही तरफ से ट्रैफिक जाना अलाउड है, तो ये उस तरह से है। द अदर कैन ओनली रिसीव, और इसके एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स। अब ट्रेडिशनल मॉनिटर्स यूज करें, आजकल के मॉनिटर्स पे तो टच स्क्रीन है, वो इनपुट भी ले लेते हैं ना, बट ट्रेडिशनल मॉनिटर्स क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देते थे, और कीबोर्ड्स क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट लेते हैं। ऑलराइट, सिंप्लेक्स मोड हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शन। जब मुझे पता है कि मेरा डेटा एक ही डायरेक्शन से आएगा, कभी भी दूसरी डायरेक्शन से नहीं आएगा, तब हम सिंप्लेक्स यूज करते हैं। पॉइंट 1 और डायरेक्शन है सबसे पहला पॉइंट कि एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, जब हमें एंटायर कैपेसिटी जो है वो यूज करनी होती है चैनल की। एंटायर कैपेसिटी जब यूज करनी होती है, ठीक है, उसके लिए मुझे ये सिंप्लेक्स यूज करना होगा। चैनल मतलब ये जो पाथ है, जो स्ट्रीट हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अगर एंटायर कैपेसिटी यूज करनी है तो वो हमारा सिंप्लेक्स में आएगा। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जैसे मेन फ्रेम है और ये हमारा मॉनिटर है, हमारा सिंपल पीसी, तो एक ही डायरेक्शन से डेटा आएगा यहाँ पे, यही मेन फ्रेम ही सर्व करेगा। अच्छा, अब कंप्यूटर देख लिया, वर्क स्टेशन देख लिया, बट अब मेन फ्रेम क्या होता है, व्हाट इज मेन फ्रेम? मेन फ्रेम क्या हो गया, वर्क स्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। वर्क स्टेशन कंप्यूटर से भी पावरफुल थे, मेन फ्रेम क्या हो गए, वर्क स्टेशन से भी powerful हो गए। Mainframe, you can say that they are large and high-speed computers, and especially one supporting numerous workstations or peripherals. Peripherals means input and output devices. These are your mainframes. ये और भी ज़्यादा चीज़ों को support करते हैं। Then next is your half duplex. We discussed simplex. Now let's see what's half duplex. Half duplex means each station can transmit both ways. अब मैंने पिछली वाले में क्या बोला था कि एक ही स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है, एक ही नोड ट्रांसमिट कर सकती है, बट इसमें क्या है कि हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर पर भी जा सकता है और रिसीवर से सेंडर पर भी वापस आ सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। जब हमारा कंप्यूटर ए सेंड कर रहा होगा तो कंप्यूटर बी सिर्फ रिसीव कर रहा होगा, और जब कंप्यूटर बी सेंड कर रहा होगा तो कंप्यूटर ए सिर्फ रिसीव कर रहा होगा। तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमारी जो है ट्रांसमिशन नहीं होगी। हाफ डुप्लेक्स इज लाइक अ वन लेन रोड, ठीक है। सपोज ट्रैफिक को अगर इस तरफ से आना है और दूसरी तरफ से भी आना है तो इस रोड को एम्प्टी होना जरूरी है। जब ट्रैफिक को ऊपर की तरफ से आना है तो पीछे वाले ट्रैफिक को रुकना पड़ेगा, ठीक है। डेटा कैन ट्रैवल बोथ वेज बट दे हैव टू गो वन बाय वन। कब करते हैं ये? इसमें भी एंटायर कैपेसिटी जो है हमारी यूज होगी चैनल की, whichever of the two devices is transmitting at that time, वो पूरी कैपेसिटी जो है वो यूज करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे, वॉकी टॉकीज, है ना। तभी तो हम बोलते थे ओवर टू टेल द अदर पर्सन, नाउ दैट पर्सन इज कैन स्पीक। वॉकी टॉकी है, फिर है सिटीजन्स बैंड रेडियोस, और these are both half duplex। अब सिटीजन बैंड रेडियो क्या होते हैं, वॉकी टॉकी तो पता है, सिटीजन बैंड रेडियो क्या होते हैं, ये वाले। इनमें क्या है, एक रेडियो टाइप, कुछ डिस्टेंस तक बात करने के लिए हमारे ये रेडियोस यूज होते हैं, और ये हमारा जो है इससे हम बोल सकते हैं। जनरली ये पुलिस के पास होते थे। Now the half duplex is used in cases where there is no need for communication in both directions for the same time. The entire capacity of the channel can be utilized for one direction. इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, लाइक आपके पास ये रेलवे ट्रैक है और एक ट्रेन को जाना भी है और एक ट्रेन को आना भी है ना। सो एक बार जब ये ट्रेन चली जाएगी तभी दूसरी ट्रेन आ पाएगी।
इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। सो हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों साइड मूवमेंट अलाउड है, सेम टाइम ये है। सो डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम 1 सेम टाइम पर नहीं होगा, तभी टाइम को डिफरेंशिएट कर दिया। दिस इज हाफ ड्यूप्लेक्स। देन इज फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या हो जाएगा? नाउ गिव मी अ गेस। दोनों तरफ ट्रांसमिशन तो होगी एंड दैट ऑल्सो simultaneously. So full duplex, also known as duplex, both the stations can transmit and receive simultaneously. It's like a two-way street with traffic flowing in both the directions. And इसमें important concept क्या है full duplex में, कि हमारे पास अब क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग हो जाती है। अब चैनल तो एक ही था, है ना, अब उसमें दोनों साइड जाने लग गया डेटा एट द सेम टाइम, तो इस चैनल को डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। इसकी बैंडविड्थ को इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा। सो एक पोर्शन से डेटा जा सकता है और दूसरे पोर्शन से डेटा आ सकता है, या फिर इन्हें शेयर करना पड़ेगा। सो शेयरिंग जो है इसमें आ जाती है। Sharing the capacity of the link with the signals going in the other direction. This sharing can occur in two way. Either the link must contain two physical separate transmission, या फिर तो अलग अलग वायर्स ही बिछा दो, या फिर आप डिवाइड कर दो सेम को दो डायरेक्शन में। कॉमन एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टेलीफोन नेटवर्क, है ना। आजकल जो हम आजकल का टेलीफोन हमेशा ही, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो क्या आपकी बात जानी क्या बंद हो जाती है? नहीं, यू कैन स्पीक टू ईच अदर एट द सेम टाइम। When two people are communicating via telephone line, both can talk and listen at the same time, and the full duplex mode is used when communication in both direction is required all the time. सारे टाइम हमें चाहिए क्या? communication चाहिए in both the directions. But here the channel must be divided into the number of devices that are connected. So here you can see the direction of data at this time. So in this lecture we have seen first what was, we did ASCII also, we did data communication components also, we also saw the difference between workstation and a computer, we did data flow, we did data representation, right? So I hope you understood this chapter. Thanks for watching.